Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject Geography, Chapter 3, Lecture number 8. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. पेज नंबर 30, वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर. Humidity is measured by a wet and dry bulb thermometer or hygrometer. What's the use of this wet and dry thermometer? To measure humidity. Humidity को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उमस. ऐसा नहीं बोलते उमस हो रही है, मतलब सनलाइट भी नहीं होती है फिर भी हमें गर्मी लगती है. तो उस जो एनवायरनमेंट, वो जो वेदर होता है, उस वेदर को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. तो उसको मेजर करने के लिए हम कौन से थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं? वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर. वन ऑफ द बल्ब इज कीप्ड वेट इन डिस्टिल्ड वाटर. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिस्टिल्ड? ओके, शुद्ध करना. मतलब एक जो थर्मोमीटर होता है वेट वाला, वो हमेशा एक वाटर में रखा रहता है. And the other bulb is keep dry and the other one is dry. The rate of cooling of the weight bulb thermometer is proportional to the rate of the evaporation of the water. Okay, so the weight bulb keeping in the water, and these water convert into vapor. मीन्स जो ये थर्मोमीटर इसमें रखा है, इस थर्मोमीटर के थ्रू ये जो वाटर है, वाटर वेपर बन के इवेपोरेट होगा. विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. और इससे एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है वो मेजर होगा. When the air is dry, evaporation is rapid and the weight bulb thermometer shows a lower reading. Then weight thermometer shows lower reading. अगर जो एयर है वो ड्राई है तो लोअर रीडिंग रहेगी. The difference in temperature between the two thermometers indicates humidity on a scale already provided. Okay, you can see in this picture there is a difference between the thermometer, the red lines. Okay, so this difference indicate humidity. इस डिफरेंस से हमें ह्यूमिडिटी का पता चलेगा कि एक्चुअल ह्यूमिडिटी है कितनी. When the humidity high, fog or clouds can form. Yes, if the humidity is high, then cloud and fog means धुआं रहता है स्काई में. A low relative humidity is indicated when there is a large difference between the reading of the two thermometers. A low relative humidity is indicate means अगर ह्यूमिडिटी कम है तो जो दोनों का डिफरेंस होगा ज़्यादा होगा. ठीक है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो डिफरेंस कम होगा. मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो डिफरेंस कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो डिफरेंस ज़्यादा होगा. Conversely, a small difference means high relative humidity. Small difference high, large difference low. Clear? हमें बस अपोजिट ध्यान में रखना है. स्मॉल है दैट मीन्स हाई होगी रिलेटिविटी, और लो है दैट मीन्स
हाई हो गया डिफरेंस। Wind vane and anemometer. Wind vane is a simple instrument used to determine the direction of wind. What's the use of this instrument to determine the direction of the wind? Means जो wind जो flow कर रही है वो कौन से direction में flow कर रही है वो हमें किस instrument से पता चलता है? Wind vane से. It should be placed in open areas where the wind is not blocked by building or trees. Oh, so we have to put this in open area. Means विंड जो उतनी चाहिए वो फ्रीली फ्लो करे, है ना. इनकेस अगर आप रूम में इसे रखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से तो आपको इतना करेक्ट डायरेक्शन नहीं पता चलेगा विंड का. सो इसे ओपन एरिया में रखना है. इवन अगर टेरेस पे रखते हैं ना तो बहुत एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चलेगा. A wind vane consists of two parts. So it has two parts. Number 1, a pointed mounted on a pole that moves freely and points to the direction from which the wind is blowing. 1. Mounted on the pole that moves freely and points to the direction from the winds blowing. Okay. सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो फ्रीली मूव करता है वो. सेकेंड, a fixed marker showing the cardinal direction named north, south, east and west which helps determine the direction. Listen, in this picture you can see एक तो है directions लिखा हुआ और दूसरा वाला जो है उसे हम क्या कहेंगे. So ये बेसिक एग्जाम्पल है विंड वैन का. इससे हमें पता चलेगा विंड कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. Winds are named after the direction from which they blow. For example, winds blowing from west are the called westerly winds. Okay, जो western winds होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? westerly winds. The speed of the wind is measured by anemometer. अब speed, इससे हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चल रहा है कि विंड नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में है. बट जो हमें विंड मेजर करनी है उसकी स्पीड, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? एनेमोमीटर. इट हैज़ 4 सर्कुलर कर्व्स दैट आर फिक्स्ड टू अ रोटेटिंग शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ थिन रोड्स. ठीक है, तो इसका जो रहता है सेमी सर्कुलर कप्स होते हैं. ठीक है. द मूवमेंट ऑफ द विंड कॉजेज द कप्स टू स्पिन. जैसे जैसे विंड्स मूव करेगी उसी तरह वो कप्स भी मूव करेंगे. द इनवर्ट कर्व ऑफ द कर्व रिसीव द मैक्सिमम फोर्स ऑफ विंड. ऑब्वियसली अगर कप्स है तो विंड सबसे पहले कप के अंदर जाएगी ना. अ मीटर अटैच एट द बेस रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पिन्स एंड measure the speed of the winds in kilometers per hour. जो इन्वर्ट कर्व है वो सबसे पहले जो विंड का मैक्सिमम फोर्स है वो कौन बेयर करेगा? इन्वर्ट कर्व. और नीचे बेस में एक मीटर होता है जिसमें रिकॉर्ड होता है कि कितने स्पिन्स किए हैं. मीन्स जो वो कप्स हैं वो कितनी बार रोटेट हुए हैं उससे हम मेजर करते हैं. और विंड को यूजुअली किलोमीटर्स पर आवर के अकॉर्डिंग उसे मेजर किया जाता है, किलोमीटर्स पर आवर के अकॉर्डिंग. आइसोथर्म्स एंड आइसोहेड्स. आइसोथर्म्स एंड आइसोहेड्स रिप्रेजेंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स ऑन द मैप रिस्पेक्टिवली. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज रेज्ड, हाउ वी जस्टिफाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑन द मैप. तो मैप पे हमें टेम्परेचर जस्टिफाई करने के लिए आइसोथर्म एंड आइसोहेड्स, इनकी ये सिंबल्स काम में आते हैं. आइसोथर्म्स आर लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर. ओके, हियर यू कैन सी फिगर 3.10 आइसोथर्मल मैप ऑफ इंडिया. अब जिसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं ये ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर को शो कर रही है. मीन्स इन एन एरिया में टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है.
Isotherms are lines joined place having equal temperature. The word isotherm is derived from iso. Iso means same and therm meaning heat. Iso का means क्या होता है same and therm का mean क्या होता है heat. Isothermal maps shows the distribution of temperature over an area. What it show? It shows distribution of temperature over an area. एक एरिया में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है. Isotherms are made by taking the temperatures recorded at different meteorological stations on a regional or global scale. Isotherms are made by taking the temperature recorded at different meteorological stations on the regional and global scale. This isotherms is totally depend on the meteorological stations. है ना, जो meteorological stations हैं, जो weather की condition reports बनाते हैं, वो ये पूरा map डिसाइड करते हैं. Isotherms help us to predict the weather for the next few years. With the help of these isotherms, we are able to predict the weather condition. हमें weather condition भी हम predict कर सकते हैं. An isohedral map of India for the mouth of generally. Isohedral map, you can see this. देखो मैप में आपको ये लाइंस क्या देखिए, कुछ डिग्रीज लिखी हुई है. और यहाँ पर पॉइंट में लिखा है. क्लियर, ये डिफरेंस है दोनों में. आइसोथर्म जो मैप होते हैं उनमें डिग्रीज लिखी रहती है और आइसोहेड्रल में आपको पॉइंट्स में लिखा हुआ मिलेगा जो भी ग्रेड्स हैं. The rainfall data collected by meteorological station is plotted as isoheads on the map to understand the distribution of pattern. Okay, सिर्फ rainfall data जो होता है वो हम isoheads की हेल्प से लिखते हैं, है ना. तो ये rainfall data है सिर्फ इसमें जो शो कर रहा है, और ये जो है ये टेम्परेचर है. क्लियर हो रहा है. आइसोथर्म्स में क्या शो करते हैं, सिर्फ टेम्परेचर, और आइसोहाइड्स में क्या चेक करते हैं, रेनफॉल. Isoheids are imaginary lines joining places with the same amount of rainfall over a unit of time. These are drawn at uniform intervals on maps. Rainfall is also depicted on maps to show seasonal distribution and variation across region. Okay. So जो region है वहाँ पर आपको रेनफॉल शो करने के लिए आपको किसकी यूज़ की ज़रूरत है. अगर आप मैप में शो करते हैं तो मैप में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आइसोहेड्स यूज़ करने पड़ेंगे. क्लियर. ओके, सो योर चैप्टर इज फिनिश. ओके, योर टुडेज होमवर्क, क्लास 7, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3, lecture number 8. Homework. Word meaning. Distilled, शुद्ध करना. Converse, उल्टा. Wind van, used for direction of wind. Shaft, हत्ता. हत्ता मीन्स कोई भी स्पेयर होगी, कुल्हाड़ी हो गई, है ना, तो उसका जो वो वुडन जो रहता है, क्या बोलते हैं उसे, जो गट्टा रहता है ना वुडन, उसे कहते हैं हम लोग हत्ता. Yes, complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.